goodness that He has bestowed upon us. Let us all awaken our soul and sing that I will trust where you lead. I will trust when I can't see, because morning by morning, great is your faithfulness to me. Daily, daily, I surrender. Grace for today is all that I need. Surprised by your mercy that's new every morning. Awaken my soul to sing. Awaken my soul to sing. And I will trust where you lead. I will trust. And I can see morning by morning. Great is your faithfulness to me. Breath by breath, overtaken by one step at a time when I'm overwhelmed. Strength for today, rival for tomorrow. Awaken my soul to faith. Awaken my soul to faith. And I will trust where you lead. I will trust. I can see morning by morning. Great is your faithfulness to me. I will trust with all my heart. You are good. You always are. Morning by morning. Great is your faithfulness to me. Morning by morning, great is your faithfulness to me. Hallelujah. If you count on all the blessings He has blessed us with, it would be innumerable. For all the time He has protected us from the evil snares that was planted in our ways, our praises wouldn't be enough. Let us sing this song that says, चाहे मैं चलूं साया मौत की तराई में से, तेरा प्रेम है जो मेरे डर को दूर करता है. चाहे मैं चलूं साया मौत की तराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे. जब भी मैं इस जीवन के संघर्षों पर टूटा तू है जो पास करे. दुष्टता से बात न जो मेरे खुदा, बात न जो मेरे खुदा. तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं. तू कभी न छोड़े मुझको, शोधता हूँ संकट में भी. तू कभी न छोड़े मुझको, छोड़ा बोलता. तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको. आएगा खुदा
साए संगर सब जाएंगे बरसते जाने तुझे से धरती पर दुष्टता से बादल जो मेरे खुदा बादल जो मेरे खुदा तो किससे मैं डरूं किससे मैं डरूं तू कभी न छोड़े मुझको छोड़ता और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको छोटा बोलो उठा तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु तू न छोड़े मुझको आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको साए संकर तब जाएंगे बरस बिंदा स्तुति में गाऊं स्तुति में गाऊं आएगा प्रकाश उनके लिए जो थामे तुझको साए संगर तब जाएंगे बरस बिंदा स्तुति में गाऊं स्तुति में गाऊं तू कभी न छोड़े मुझको जागता और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको हर छोड़ा बोलता तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु तू 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 न छोड़े मुझको We thank you, Lord, for keeping us safe, for hearing our prayers. When we thought our soul was broken and alone, you took it and made it new. उसी ने हमारे आत्मा को जब हमने सोचा कि वो टूटा हुआ है कोई इसके साथ नहीं है यीशु ने बोला कि वो हमारे साथ है डर मत मैं तुम्हारे साथ हूँ करके उसने बोला है आइए हम अगला गीत गाएंगे जो कहता है ओ माय सोल ओ हाउ यू वरी हाउ यू weary from fearing you lost control. My soul, oh how you worry, how you weary from fearing you lost control. This was the one thing didn't see coming, and no one will blame you. If you fight in private, you try to hide it away, so no one will see you stop believing. Oh, my soul, you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, He will make a way. Let Him show you how you can lay it down. You're not alone. You can be honest, no
don't try to promise that someday it all works out. 'Cause this is the valley, even now deep, breathing of your dry bones. There will be tempting, there will be beauty where beauty goes and so this much I know. Oh, my soul, you are not alone. There's a place that you I still face to God to know. One more day, even make a way. Let him show you how you can lay this down. Oh, my soul, you are not alone. There's a place of fear, I still face of God, you know. One more day, even make a way. Let him show you how you can lay this down. You're not alone. You're not alone. Let us all say, my soul, you are not alone. Our Heavenly Father, Lord Jesus, is with us. हमारा स्वर्गीय पिता यीशु हमारे साथ है. हमारे हृदय को कहे, हमारे सोल को कहे कि तू डर मत करके. वही है जिसने गर्भ के समय से हमें चुना है, हमें पाला है, हमें पोषा है, माँ के समान ख्याल रखा है, माँ से भी ज्यादा प्यार किया है. आइए हम ये अगला गीत गाएंगे जो कहता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है. गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में. डाली तूने अपनी रूह में, भर दिया अपने नूर से. गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में. डाली तूने अपनी रूह में, भर दिया अपने नूर से. माँ के समान माँ की तरह ख्याल रखता है. माँ के समान माँ से भी ज्यादा प्यार करता है. तू है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है. पोछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए. माँ के समान माँ की तरह ख्याल
रखता है, माँ के समान माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान माँ की तरह ख्याल रखता है, माँ के समान माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह किया है मेरी, छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह किया है मेरी, छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह किया है मेरी, छोटी सी छोटी बातों की। हाथों में उठाकर तुम घूमते, पलकों में मुझे बैठाया है, पंखों में छुपाया है मुझको, गहरा तेरा मेरा नाता है, माँ के समान माँ की तरह ख्याल रखता है, माँ के समान माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान माँ की तरह ख्याल रखता है, माँ के समान माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा तू प्यार करता है प्रभु यीशु। बहुत ही सुंदर गीत है। गीतकार कहता है, सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है प्रभु यीशु। जब इस समय में जब हम तकलीफ में हैं, हम जब आंसुओं में हैं, तो हम एक आशा के साथ ये गीत को हम गा सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु तू ही है जो हमारे सारे आंसुओं को पोंछता है। और जो डर से हम जो आज है, जिस डर में आज हम जी रहे हैं प्रभु, हमारे सारे डर को तू दूर कर देता है प्रभु। और तूने हमसे ऐसा प्यार किया है कि हमारी हर एक छोटी सी छोटी बातों को का तू परवाह करता है,
और हमारी जरूरतों को तू पूरा करता है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको। आइए सब मिलकर उसे धन्यवाद दे, उसको कहे प्रभु यीशु मसीह माँ के समान तू है, माँ की तरह, माँ के समान तू प्यार करता है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, हालेलुया। क्योंकि आपका वचन कहता है चाहे माता पिता भी तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। आपके इस अद्भुत प्यार के लिए, उस वायदे के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम आप पर ही भरोसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और हमारा भरोसा केवल आप ही पर है, और हमारे सारे डर को, सारे गम को आप दूर करते हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हो जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो जीसस, हालेलुया। हम जहां पे भी है अपने मुंह को हम खोल के उसे धन्यवाद देंगे, उसके आशीषों के लिए, उसके उपकारों के लिए हम उसे धन्यवाद देंगे। कहेंगे प्रभु यीशु मसीह हम इस संकट से जो गुजर रहे हैं प्रभु लॉर्ड, हम निराशा में हैं प्रभु, लेकिन आप हमारी छोटी सी छोटी बातों का ख्याल रखने वाले खुदावंत है प्रभु यीशु मसीह। एक माँ के समान आप हमसे प्यार करते हो प्रभु, जो बिना पूछे भी जो बातों को समझती है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। प्रभु यीशु मसीह आपके उस अद्भुत प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारी जरूरतों को जानने वाले खुदावंत आप हो, हमारी जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम उससे प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु यीशु मसीह ये मेरी परेशानी है, या इस बीमारी से मैं गुजर रहा हूँ, या इस बीमारी से मैं तकलीफ में हूँ, या ये मेरे जीवन में परेशानी है, कर्ज से डूबा हुआ हूँ प्रभु यीशु मसीह। कोई शांति नहीं है प्रभु जीवन में, अशांत का जीवन मैं जी रहा हूँ, जी रही हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप मेरी छोटी सी छोटी बातों की परवाह करते हो प्रभु यीशु मसीहा। लॉर्ड मेरी प्रार्थना आज सुबह के वक्त यही है कि मेरे परेशानियों को आप दूर कर दे प्रभु, मेरे निराशाओं को आप दूर कर दे प्रभु, मेरी जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु यीशु मसीहा, क्योंकि माँ के समान आपका प्यार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर, आपके सारे उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। आपके आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, अच्छे गीतों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसे सारी आदर सारी महिमा प्रभु आप ही को मिले प्रभु यीशु मसीहा। हम घटे प्रभु और आप हमारे जीवन में बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीहा। ओ लॉर्ड, गीतों में आपकी अगुवाई थी, आपकी उपस्थिति थी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय भी हम आपके हाथों में देते हैं। बोलने वाले दासों को तो अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीहा। आपने हमें से हर एक को अभी तक संभाला है, इसलिए धन्यवाद। आपके सारे आशीषों के लिए धन्यवाद पिता। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से हम मांगते हैं, आमीन जीसस, हालेलुया। आइए अपने बाइबल को हम निकालेंगे और इस वक्त भजन संहिता को हम पढ़ेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉनी है जो आगे का समय भजन संहिता में हमारी अगुवाई करेंगे। सभी लोग भजन संहिता 22 को निकालेंगे। 22 भजन संहिता, उसका 16 से लेके एक आखिरी वचन तक हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो आगे का जो समय है मैं पादमान को देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह के समय भजन संगीत 22 साम्स 22 हम खोलेंगे। उसमें पिछले हफ्ते हम लोग 1 से लेके 15 वचन तक पढ़ा था। अभी 16 से लेके हम लोग आखिरी वचन तक पढ़ेंगे, 31वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। भजन संगीत साम्स 22 16 से लेके। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हत्या और मेरे पैर छेड़ता है। ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಣಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದು, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾರೆ। 18वां वचन, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरा पहराव पर चिट्ठी डालते हैं। ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ, ನೀನಾದರೂ ದೂರವಾಗಿರಬೇಡ, ಬೇಗ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡು। 20वां वचन, मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरा प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಕಾಡು ಕೋಣಗಳ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು, ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ। 22वां वचन, मैं अपने भाइयों के सामने तेरा नाम का प्रचार करूंगा,
सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ ವಂಶದವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. 24 वचन, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे गुनाह करता है और ना उसे अपना मुख छिपाता है, ನಾನು पर ಮಾ- जब उसने उसकी दवाई दी तब उसकी सुन ली। ನಾನು ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಆಧಾರನು, ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆನು. 26 वचन, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा की खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे, तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। ಮಂಡಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಯೆಹೋವನೇ, ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳವರು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವರು. 28 वचन, क्योंकि राज्य यहोवा की का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಟರೆಲ್ಲರೂ ಉಂಡು ಆರಾಧಿಸುವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗುವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವರು. 30 वचन, एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरा पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। 31 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा वह कहकर प्रकट करेगा कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बंद है थोड़ा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के समय जो भजन संगीत हम लोग 16 से लेके 31 वचन तक जो हमने पढ़ा है, क्योंकि वचन हमें बताता है एक परमेश्वर का दास का जो 1 से लेके 22 अध्याय 1 से लेके हम लोग 21 वचन तक हम लोग पढ़ने के समय एक भक्त का, एक सेवक का, एक ऐसे परेशानी में जो अपने मौत सामने है और उसको ये कर रहा है, मार डाल रहा है, तो उस समय जो रोना और उनकी कष्ट, उनकी संकट, और उसके बाद में जो 21 के बाद 22 वचन से लेके 31 वचन तक हम ये देखते हैं, क्योंकि वो जो परमेश्वर से आशीष पाने का बाद वो भक्त किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करता है, किस रीति से परमेश्वर का वो गवाही देता है। क्योंकि दुनिया का यात्रा में 16 वचन में पढ़ा है, क्योंकि कुत्ते ने मुझे घेर लिया है, कुकर्म का मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरा हुआ है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेड़ता है। क्योंकि ये दुनिया का यात्रा में यीशु मसीह में हम लोग चलने का समय हमें इतने इसमें से हमें आसान से स्वर्गीय राज नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि जो यीशु का राह में चलने वाले के लोगों को कष्ट, संकट, निंदा, अपमान अपने घर के लोगों से, अपने जो परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदार लोगों से, अपने कलीसिया से, उनको अनेक रीति से उनको कष्ट आएगा, निंदा आएगा, अपमान आएगा। जब यीशु में रहकर स्थिर रहकर आगे बढ़ने का समय यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। 16 वचन नहीं लिखा है, क्योंकि कुत्ते ने मुझे घेर लिया है, कुकर्म ने मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरा हुआ है। कुत्ते ने मुझे घेर लिया है, उसका मतलब कुत्ता का आके घेरा नहीं है, कुत्ते के जैसे लोग उनको आके घेर चुका है। जिस रीति से कुत्ते अपने उसमें जो किस रीति से कुत्ते का पीछे पड़कर उनको उसको मालूम नहीं है क्या है करके, मगर वो ये करते हैं, चिल्लाते जाता है, उनके पीछे पड़ते रहते हैं, उनको दौड़ाते रहते हैं। मगर इधर वचन बताते हैं ऐसा लोगों से भी हमें बचा ले, क्योंकि जब इतना निंदा आता है, इतना डर होता है, ये कभी काटेगा। मगर परमेश्वर का वचन बताता है डर मत। हम लोग ने एक आखिरी गीत गाया, माँ का तरह मैंने तुझे संभाला है। फिर भी वचन बताता है एक माँ अपने बच्चों को भूल सकते है कि यदि भूल सकता है, मगर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा करके वचन में भी लिखा है। इसके लिए ऐसे समय में भक्तजन अपनी ताकत को नहीं इस्तेमाल किया, अपने जो बुद्धि ज्ञान शक्ति को उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने परमेश्वर के जो चरणों में आकर रोना चालू किया। जब हम 18 और 19 वचन देखने के समय, वो मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं
और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालता है। ये वचन यीशु में ये पूरा हुआ है, जब यीशु के वस्त्र ने उन्होंने चिट्ठी डाला है। इसमें 18 वचन में कन्नड़ में ऐसा लिखा है, ನನ್ನ ಮೇಲೊದಕಿಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ अंगिकोस्कर चीटी हाकुत्तारे। ये 18 वचन, जब यीशु मसीह इस दुनिया की यात्रा में स्वयं परमेश्वर होने पर भी हम लोग सबको पापों से छुटकारा पाने के लिए मानव रूप धारण किया। नाम उसी का है, उस परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम से वो इस धरती में आया है, मानव रूप धारण किया, स्थान बेटे का है। उस समय जैसे उन्होंने अपने पापों से बचने के लिए जो वचन जो भजन संगीत में लिखा है यीशु में पूरा है, उसके ऊपर के कपड़ों को उन्होंने जो एक किया है और उनके जो पहरावे के लिए उन्होंने चीटी डालकर एक किया है, क्योंकि हर चीज उन्होंने अपने लिए एकदम अपने मुंह को बंद करके और सहन करते हुए, सहन शक्ति से सहन करते हुए हमारे लिए, आपके लिए उन्होंने, उनका मुंह से एक ही लफ्ज आया, पिता उनको क्षमा कर, वो क्या करते उन्हें मालूम नहीं है। ऐसे हम लोग भी इस रीति से चलना है करके परमेश्वर का वचन हमें बताता है। उस समय हमें, जो हम इंसान है, उस समय हमें गुस्सा आता है, उस समय हमें जो तकलीफ होता है, तो हमें जजमेंट नहीं करना है, हमें न्याय करना नहीं है, क्योंकि इसके लिए उस समय यीशु मसीह केवल मनुष्य था। इसके लिए उन्होंने किया, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ा है करके हमने 22 अध्याय पहले वचन में पहले ही पढ़ा था, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा है, क्योंकि संपूर्ण उस समय मनुष्य था, क्योंकि उनको मरण, अपने आप में मरण में सौंपने का था। परमेश्वर होने पर भी उस स्थान को छोड़कर इस धरती में आकर जो अपने एक बात से लाजर को, मारा हुआ लाजर को, सड़ा हुआ लाजर को उन्होंने बाहर निकाला, ऐसे हम देखते हैं यहाँ वही परमेश्वर का इसमें से उनको होते पर भी, परमेश्वर होने पर भी उन्होंने एकदम मुंह बंद करके हमारे लिए, आपके लिए अपने आप को सौंप दिया, क्योंकि वो गवाही के साथ आगे खड़ा था। इसके लिए 22 वचन ये बताता है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरा नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। मेरा प्यारे लोगों, अंतिम समय है, डर हर एक का दरवाजे में खटखटा रहा है, मगर उसी वक्त हमें वो डर का आवाज को नहीं सुनना है, हमें यीशु का आवाज को सुनने के लिए आत्मिक कान खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो यीशु का आवाज सुनकर हम दरवाजा खोलेंगे दिल का, तो यीशु मसीह अंदर आएंगे। जब यीशु मसीह अंदर आएंगे, हमें किसी बात का, किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि डर को दूर करने वाला, युद्ध को लड़ने वाला वो डॉक्टर का डॉक्टर है, वो राजाओं का राजा है, वो हमारे अंदर आने का समय हमें किसी का डर नहीं है। इसके लिए पौल कहता है, मेरे परमेश्वर का प्यार से मुझे दूर कौन कर सकता है, कौन सा क्लेश है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या संकट है, मुझे उस यीशु से दूर कर सकता है। यस मेरे प्यारे लोगों, हम इस दुनिया का यात्रा में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, ये लॉकडाउन का समय हमें अपने आप को परमेश्वर से सौंप कर, हमें और लोगों को प्रार्थना करते हुए, और लोगों को तसल्ली देते हुए, और लोगों को वचन देते हुए, और लोगों को यीशु का नाम बताते हुए उनको यीशु का पास लाना है। मेरे प्यारे लोगों, एक कदम हम कैसे जाएंगे, हमें जाने नहीं होता है। हम कह सकते हैं अभी लॉकडाउन है, हम और लोगों को जाके कैसा हम यीशु के बारे में बता सकते हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। मेरे प्यारे लोगों, घर का अंदर से भी हम लोग यीशु का जो वचन प्रचार कर सकते हैं, घर के अंदर भी हम और लोगों को मोबाइल के द्वारा हम बातें करते हुए यीशु का नाम को प्रचार कर सकते हैं। कल का दिन जो उड़पी से एक फोन आया, मणिपाला में एक 2 साल का बच्चे, धन्या नाम है, हिंदू परिवार से आया है, गदग गांव का है, वो गांव का एक बच्चे जो यीशु को नहीं जानता है, 2 साल का बच्चा है, वो चलते चलते थोड़ा चलता है, फिर चक्कर आके फिर बेहोश होके गिर जाता है। डॉक्टर ने बोला उसको कुछ ऐसा कमी चीज है, उनको बार बार ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। आज उस बच्चे का 2 साल का बर्थडे भी है। कल ही रात को मालूम पड़ा, कल ही रात को उनको वचन बताया, यीशु के बारे में बताया। मेरा प्यारे लोगों, उस बच्चे के लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमें ऐसा करते हुए एक दूसरे को हम प्रार्थना में इकट्ठा होते हुए, एक दूसरे को वचन में इकट्ठा होते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यीशु का नाम को प्रचार कर सकते हैं। यही तो गवाही है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरी नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा करके भाई चले रहे। क्या हम यीशु का नाम का प्रचार किया है?
यीशु ने जो महत् कार्य किया है, यीशु के हमारे जीवन में यीशु ने जो उपकार किया है, उसका हम लोग ने यीशु भाइयों के बीच में प्रशंसा किया है या सभा के बीच में उसका प्रशंसा किया है? अगर नहीं किया है, हम लोग केवल आशीष लेने वाला है, केवल आशीष लेने वाला है। हमें हीलिंग, मिरेकल, ब्लेसिंग तीनों मिलेगा, बट स्वर्गीय राज नहीं मिलेंगे। इसके लिए यीशु ने बोला, जो यीशु मसीह सिंहासन में बैठकर आने के समय उनके राइट हैंड साइड में शीप आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में गोट आएगा। शीप को बोलेंगे, आओ मेरे प्यारे लोगों, ये स्वर्गीय राज को तुम ले ले। और जो लेफ्ट हैंड साइड का गोट को है, धर्म को ना निभाने वालों, मेरा सामने से हट जा। स्वामी स्वामी तेरा नाम से हमने जो प्रचार किया, तेरा नाम से हीलिंग किया, मिरेकल किया, ब्लेसिंग किया, यीशु मसीह बोलता है, तुम कौन है हम नहीं जानता है। क्या हम ऐसे मंडली में है? या यीशु ने उपकार किया ना भूलते हुए, हम सच्चे को जानते हुए, आगे बढ़ते हुए, उनका जो फॉलोअर बनते हुए, उनका मिलिट्री में हम आगे बढ़ते जाएंगे? ये गवाही का साथ हम खड़ा है। जब ऐसा करने से यीशु मसीह और भी हमारा और आपका प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। इसके लिए उसमें यिर्मयाह का किताब यिर्मयाह का किताब में 15 अध्याय में 11 वचन एक ऐसा लिखा है। यिर्मयाह बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्सेस 11, यिर्मयाह 15:11 में लिखा है, यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरे भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा, विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रुओं से भी तेरा विनती करूंगा। देखो कितना अच्छे से यहाँ वचन लिखा है। कन्नड़ में ऐसे लिखा है, ಇದಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಮೇಲಾಗುವಂತೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವನು, ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೇಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು। जो हमारा ये परमेश्वर के राह में चलने का समय, जो कष्ट और संकट आने का समय, हम अपने जो बल शक्ति इस्तेमाल ना करते हुए, हम यीशु को धन्यवाद करते हुए, यीशु के हाथ में ये युद्ध को सौंपने का समय यीशु मसीह का वचन बताता है, वो सब लोगों को तेरा चरण में शरणागत करने के लिए लेके आएगा। हमें खाली परमेश्वर को धन्यवाद करना है, हमें उनका नाम को सभा का बीच में उनका नाम का प्रशंसा करना है, हमें उसका नाम को अपने भाइयों का बीच में उनका नाम को हमें प्रचार करना है। ऐसे करने का समय यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए दरवाजा खोलेंगे। मेरा प्यारे लोगों, आज के सुबह का समय ये वचन हमें ये बताता है, तू जजमेंट अपने हाथ में ना ले, न्याय का दंड अपने हाथ में ना ले, तू प्रार्थना कर, तू क्षमा कर और तू शायन शक्ति से यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहे और तेरा दरवाजा यीशु मसीह खोलते जाएंगे, खोलते जाएंगे, खोलते जाएंगे। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं देखना है, हमें डर को नहीं देखना है। पतरस ने जो यीशु ने बुलाया, यीशु ने जब समुद्र के ऊपर चलते गया, जब पतरस ने कहा, स्वामी यदि आप हैं हमें आने को आप ये करो, आज्ञा करो। जब यीशु ने बुलाया, पतरस जब पानी में उतरा, थोड़ा आगे चला, जब वो यीशु को देखते चला, और जब तूफान का आवाज आने का समय उन्होंने जो तूफान को देखा, जो समुद्र से डूबने गए, समुद्र के अंदर डूबते गए, जब बचाव करके यीशु से चिल्लाना चालू किया। हम भी इस दुनिया का यात्रा में हमारा एक गोल, हमें यीशु में उस स्वर्गीय राज का होना चाहिए। हमें यीशु के ऊपर अपने नजर रखते हुए हम आगे बढ़ने के समय, तूफान आएगा, आंधी आएगा, हमें उस आवाज को नहीं सुनना है, हमें उसको आंखी से उसको नहीं देखना है, हमें यीशु को देखते आगे बढ़ने का समय यीशु मसीह अपनी बाहों में लेके हमें और आपको संभालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन द्वारा हमें और आपको आशीष दे और भी उनके आगमन के लिए तैयार करे। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत ही अच्छा भजन संहिता हमने आज पढ़ा है और पास्टर जॉनी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा वचन आज हमें बताया है। सचमुच में हमें वचन में आगे बढ़ते जाना है और प्रभु यीशु मसीह को आदर करना है। और ये जो भजन संहिता आज जो हमने पढ़ा है, एक भविष्यवाणी का भी भजन संहिता है जो हम पढ़ते हैं। जगह अगर उसका 16 और 17 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे दिया गया है कि उसने उसके हाथों को और पैरों को छेदा है। और 17 वचन 18 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि they divide my garments among themselves and throw dice for my clothing। मतलब उसके वस्त्र को उन्होंने कास्ट किया और उसे बेच दिया। जिस तरह से हम यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय में हम देखते हैं कि उसके वस्त्र को सिपाहियों ने उसे बांट दिया था। और आगे एक आशा है या एक उम्मीद है कि उसका जो नाम है सारे लोगों के बीच में प्रकट होगा और उसका जो राज्य है, जो अनंत काल का जो राज्य है,
लोगों के बीच में आएगा, और एक दिन आएगा जब हर एक घटना या हर एक संसार के लोग यही कहेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो इस वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन है आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। और उन्होंने जो बच्ची के बारे में कहा है, हमें उस बच्ची के लिए भी हमें प्रार्थना में याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह उसे आशीष दे और उसे संभाले और अच्छी तरीके से रखे। तो आइए अब हम मुख्य संदेश में जाते हैं। हमारे बीच में पासवान है पास्टर चाको, जो मुख्य संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे। वचन में जाने से पहले मैं पास्टर जॉनी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज के वचन के आशीष के लिए वो प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद हम मुख्य संदेश में हम जाएंगे। सब अपने आंखें बंद करके सर झुकाते हुए हम लोग प्रार्थना के साथ इकट्ठा हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज की सुबह के समय आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह, स्तुति का बेट आप तक पहुंचे प्रभु जी। भजन संगीत का द्वार आपने जगाया प्रभु जी। यीशु मसीह, हम लोग के तकलीफ में, कष्ट और संकट के समय आपका आत्मा से भर दे प्रभु जी। जो कुछ है हम लोग उसमें खुशी से आपको धन्यवाद करें। जो कुछ है उसमें से थोड़ा कुछ लेकर और लोगों को दे सके प्रभु जी, ताकि आपका नाम का प्रचार होते हुए, आपका नाम का महिमा होते हुए इस दुनिया के यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मदद कर। यीशु मसीह, विशेष करके आज की सुबह का समय प्रभु जी, फिर से कुछ देर प्रभु जी आपका जिंदा कलाम सुनने से पहले हम लोग आपका चरणों में आके आपका हाथ में हम लोग सौंप देते हैं प्रभु जी। ये ऑनलाइन द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपने एक दरवाजा खोला है प्रभु जी। ये ऑनलाइन द्वारा आज की सुबह के समय जो भी आपका चरण में आकर प्रभु यीशु मसीह इस वचन को सुन रहे यीशु मसीह, आपका दास का मुंह को खोल दे प्रभु जी। आपका दास की ओटों से निकलने वाला जिंदा कलम वो आंख बनकर बरसा है प्रभु यीशु मसीह। आपका दास को आप आत्मा से भर दे परमेश्वर यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी सुनने वाला हर एक लोगों का हृदय को छेद डाले प्रभु जी। और इस लॉकडाउन के समय प्रभु जी, और घर बैठते बैठते हुए प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे समय आपको दे सके प्रभु जी, प्रार्थना में और स्तुति में और बाइबल पढ़ने में प्रभु जी, और प्रार्थना में घुटना टेका कर आपको धन्यवाद करते हुए आपका आत्मा से भरने के लिए ये जो समय इस्तेमाल करने के लिए हर एक से बातें कर प्रभु जी। सब कुछ मैं आपका हाथ में सौंप देता है, यीशु नाज़री के नाम से मानता सुनो और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम मुख्य संदेश में हम जाएंगे, और आगे का जो समय है मैं पासवान को देना चाहता हूँ। तो सुबह के समय सारे भाई बहनों को सीजेसे चर्च की तरफ से और साथ में बेतल चर्च के सारे भाई बहन पासवान सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के समय हम आपको सारी शुभकामनाएं देते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दें और आप सबों को परमेश्वर सुरक्षित रखें और आप लोगों की रक्षा प्रभु करें। और ये जो समय के अंदर हम आए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और इससे पहले कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं ब्रदर अमित के लिए और जो जोशुआ और जो भी इसके पीछे मेहनत किए हैं उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर गॉडविन के लिए, उनके परिवार के लिए। कंटिन्यू हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के दास के लिए, उसके परिवार के लिए, और साथ में पास्टर जोनी उसके परिवार के लिए भी हम दुआ करते हैं। बेतल चर्च के, सीजेस चर्च और जितने भी हमारे परिचय पास्टर लोग हैं देश विदेश के अंदर, गांव शहर के अंदर, उन सबों को प्रार्थना में याद रखते हैं। ये सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम नमस्कार कहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। सबको मसीह यीशु की तरफ से शालोम, शांति आपके साथ में बना रहे। ओके, आज सुबह के समय आपका ध्यान में परमेश्वर के कुछ वचनों पर लेके आना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण समय के अंदर में और आप आके बैठे हैं। ये जो एक समय है, मनुष्य को नहीं मालूम क्या करना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन के अंदर हर बातों से दुखी, निराश और परेशान। ना कोई गांव ऐसा है जो कह सकते हैं कि हमारे गांव में शालोम है, शांति है। ना कोई डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, ना कोई सिटी, ना कोई तालुका, ना कोई शहर, और ना कोई दुनिया में ऐसे कोई जगह है जहां पर वो कह सकते हैं वी आर अंडर द शालोम, हम शांति के अंदर हैं। और आज मैं कुछ बातें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है हेवन एंड अर्थ शैल पास अवे, आसमान टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरा शब्द, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकला है वो
कभी नहीं टलेगा, और जो शब्द मेरे मुंह से निकला है वो व्यर्थ वापस नहीं आएगा, वो अपने काम को पूरा करेगा। सो आइए आज सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। बुक ऑफ एशिया नबी की किताब, उसका 55 अध्याय 55 चैप्टर 55, उसका 10 और 11 वचन आज सुबह के समय आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। एशिया चैप्टर 55, उसका 55 अध्याय, उसका 10 और 11, 10 and 11 वर्स। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। 11 वचन ध्यान से सुनिए। उसी प्रकार, किस प्रकार? जो वचन हमने 10 से में पढ़ा था, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रभु इस वचन पढ़े जाने पर हमें आशीष दें। हम एक शब्द प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि रात भर तूने हमें संभाला, और इस कठिन समय के अंदर हमें से हर एक भाई बहन बच्चों को, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालता है, उसी प्रकार से इस बड़े दुख के समय के अंदर और तकलीफों के बीच में हमें से हर एक को संभाल के रखा, और वापस प्रभु जी तेरी आवाज को सुनने के लिए तूने मौका दिया। धन्यवाद देते हैं। हमें से हर एक हृदय से तू बातचीत कर, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। राइट। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे समय ना गवाते हुए। यहाँ पर दो बातें बड़े महत्वपूर्ण यहाँ पर एशिया नबी की किताब के अंदर हमने पढ़ा है। जिस प्रकार से वर्षा, हिम मतलब बर्फ, आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश में से, कभी है आपने देखा कि बारिश नोहा के समय के अंदर कभी बारिश के बारे में सुना ही नहीं, पर नोहा के समय के अंदर बारिश गिरा, वो बारिश वापस नहीं गया। ओला गिरा, वापस नहीं गया। तो यहाँ पर एशिया वही शब्दों को इस्तेमाल करता है। जिस प्रकार से वर्षा, बारिश और बर्फ आकाश से गिरता है, वापस नहीं लौटता है। ये कितने सत्य गहरी बात है कि परमेश्वर के जो काम है, जो आकाश से जमीन पर गिरता है और फलदायक होता है, आशीष के लिए देते हैं और लौट नहीं जाता है। और बाइबल उसका कंपेयर करता है, उस शब्दों के साथ में उसका कंपेयर करता है। उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुंह से निकला है। मैंने आसमान को बनाया, मैंने पृथ्वी को बनाया, पानी गिरता है पृथ्वी में रहने वाले लोगों के लिए, और बाइबल बताती है कि जो शब्द मेरे मुंह से निकलता है, उसी प्रकार, ऐसे लिखा है ना, उसी प्रकार से मेरा वचन जो होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। यहोवा परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ बहुत सारे शब्द है, पूरा बाइबल उसके मुंह से निकला हुआ शब्द है, पूरा वचन है। पर यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूं। और उसी प्रकार से मेरा शब्द, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। भविष्यवाणी हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं, कई लोग विश्वास नहीं करते, पर विश्वास करें या ना करें, अब हमारे आंखों के सामने सारी भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है। तो प्रभु यहोवा के वचन से मुंह से निकला हुआ जो शब्द है, वर्ड है, वो वर्ड जो निकला, बाइबल बताती है, जब उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो शब्द निकला यहोवा परमेश्वर के मुंह से, और शब्द जाकर पृथ्वी को सृष्टि किया, उसने आसमान की सृष्टि किया, प्लैनेट, हर चीज हम देखते हैं। वो जो शब्द निकला है, वो शब्द तब से लेकर आज तक वो शब्द वो
उसके अंदर सृष्टि करने का ताकत था और वो सृष्टि किया। सूरज नहीं था, सूरज बनाया, सब कुछ। ये जो शब्द आप देखते हैं, आप नए नियम के अंदर भी देखते हैं। सेनापति ने एक बार प्रभु यीशु से कहा, प्रभु मेरा सर्वेंट मेरे घर में बीमार है, मैं इसके लायक नहीं तुम मेरे घर में आए, पर एक शब्द भेज दें और शब्द मेरा सेवक के घर, जहां पर मेरा घर है, जहां पर मेरा सेवक बीमार पड़ा है, और वहां पर चले जाएगा, वो व्यर्थ वापिस नहीं आएगा। जिस काम के लिए मैंने वो शब्द को भेजा है, तेरा सेवक ठीक हो जाएंगे, तेरा सेवक चंगा हो जाएगा, मेरे मुंह से जो शब्द निकला है वो व्यर्थ वापिस नहीं आएगा। वो शब्द चाहे भले कितने भी दूर क्यों ना हो, कितने हजारों किलोमीटर दूर ना हो, क्यों ना हो, यहोवा परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है, वो व्यर्थ वापिस कभी नहीं आता। और उसने कहा एक शब्द बोल दें, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। यहोवा प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो निकला हुआ शब्द है, सेवक को ठीक किया। उसके शब्द से निकला हुआ शब्द है, अंधे को ठीक किया, वो खाली नहीं गया। ऐसा कोई अंधा बाइबल के अंदर हम नहीं देखते हैं जो वो शब्द वापिस आ गया। लेंगड़े को टांगे दिया, मरे हुए को जिलाया, वो शब्द वापिस नहीं आया। वो शब्द जाकर लाजर को जिंदा किया। आप देखते हैं परमेश्वर के प्रभु के मुंह से निकला हुआ हर शब्द अद्भुत काम करके आया। अब यहाँ पर कुछ बातें जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, जो आज हमारे सामने इन बातों को पूरा हो रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे सपन्या की किताब, लास्ट किताब के अंदर हम जाएंगे। सपन्या की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 15 वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह वही नगर है, सिटी है, नगरी है, जो मग्न रहती और निडर बैठी रहती थी। सिटी जो है, जो कहते थे एक समय के अंदर हमें कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं, हम सही सलामत है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास धन है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास में मिलिट्री है, फौज है, आधुनिक हथियार है। बाइबल बताती है यह वही नगरी है जो मग्न रहती और निडर बैठी रहती थी और सोचती थी कि मैं ही हूं। मन के अंदर ये विचार आती थी, मैं ही हूं, क्योंकि मैं सब दुनिया के अंदर सबसे पहला नंबर मेरा देश है, मेरे देश के अंदर वो होएगा, हमारा देश किसके सामने झुकेगा नहीं, हम किसी के सामने झुकेगा नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं। परंतु अब ये उजाड़ और वन पशुओं को बैठने का स्थान बन गया। देखिए अभी ये उजड़ गया है और वन पशु जानवरों को रहने का घर हो गया है। न चर्च एंड द टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने पवित्र स्थान हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं, वो स्थान आज बंद हो गए। और बाइबल बताती है कि ये जो स्थान जो कहते हैं कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास सब कुछ है, मुझे छोड़ कोई है ही नहीं, परंतु अब वो उजाड़ और वन पशुओं को बैठने का स्थान बन गया है। यहां तक कि जो कोई उसके पास से होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। क्या पिछले साल ये भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ हमारे सामने? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, फौज लोगों के लिए जो सेवा करते हैं उनके लिए ताली बजाओ, बर्तन भी पीटो, झांझ बजाओ, बहुत कुछ शोर करो। आज आराधना का स्थान वन पशुओं का, पक्षियों का स्थान बन गया है। चर्च के अंदर पक्षी आकर अपना डेरा बसा रहे हैं, धूल मट्टी वहां पर जम रहा है। जब मनुष्य कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, तो ऐसे समय के अंदर बाइबल बताती है मनुष्य के ऊपर अचानक विपत्ति आते हैं। उसका पहला अध्याय में आपका ध्यान वापस लेके आना चाहता हूं। उसका 2 वचन में लिखता है, मैं धरती के ऊपर से सब मनुष्यों का अंत कर दूंगा। जब परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलता है वो व्यर्थ वापस नहीं आता है। जब भविष्यवाणी कहता है मैं धरती के ऊपर से सब का अंत कर दूंगा,
यहोवा की ये वाणी है, ये आकाशवाणी नहीं है, ये यहोवा की वाणी है। जो मुंह से निकलता है वो व्यर्थ कभी नहीं होगा। जो कुछ बाइबल में लिखा गया है उसको पूरा होना अवश्य है। और बाइबल बताती है यहोवा की वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। यहोवा परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है, मैं मनुष्य और जानवर को, पशुओं को, दोनों का मैं अंत कर दूंगा। ऐसे समय, लड़ाई के समय के अंदर जब आएंगे, बाइबल बताती है, रेवलेशन में लिखता है, मैं पृथ्वी के अंदर 1/3 लोगों का नष्ट कर दूंगा। 1/3 लोग, 135 करोड़ भारत देश के अंदर है, सारे दुनिया के अंदर कुछ 800 करोड़ से ज्यादा कुछ लोग हैं। तो आप समझ लीजिए कि 1/3 लोग विनाश के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि लोगों की बुराई परमेश्वर के सम्मुख बढ़ गया है। और जब भी परमेश्वर के सम्मुख बुराई बढ़ जाता है, परमेश्वर के पास में और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, एक जरूर है, कोई भी गुरु कोई भी चीज जब सिखाते हैं 100% वो पूरा कला अपने चेले को नहीं सिखाते। याद रखना ये बात। कोई भी गुरु कराटे, जूडो कराटे या और कोई बड़े कला दिखाते हैं, कुश्ती करते हैं, जो भी करते हैं, वो कभी भी 100% चेले को सिखाया नहीं जाता है। 1% अपने पास में रखता है। वो इसलिए रखता है, कभी चेला उसका दुश्मन हो सकते हैं, वो गिर ना जाए, नाश ना हो जाए, इसलिए किसी भी दुश्मन के ऊपर हावी होने के लिए वो एक कला अपने पास में रखता है। सो परमेश्वर जो है, बाइबल बताती है कि वो आकाश पशु दोनों का अंत कर देगा। पर जब अंत कर देगा, जब परमेश्वर कहता भी है ना, तो ये बात को याद रखना कि परमेश्वर के अंदर स्वयं एक शब्द छिपा हुआ रहता है। वो ये है कि मनुष्य जब कोई चीज जब करते हैं, मनुष्य के विरुद्ध में जब चले जाते हैं, सो बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब उसको नाश करता है, तो उसके पास में परमेश्वर अपने पास में एक कला रखता है। वो कला इंसान के लिए रखा जाता है। इंसान जब नाश होते हैं, इंसान को बेचने के लिए परमेश्वर एक बात उनके पास में रखता है। मैं बाद में आपको मैं बताता हूँ वो क्या है। सो यहाँ पर बाइबल बताती है, मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र के मछलियों का और दुष्ट समेत उनके रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। ना समय, एक ऐसे समय के अंदर मैं और आप आके बैठे हैं, जैसे कि हमने एशिया की किताब में पढ़ा है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा। जिस प्रकार से बारिश गिरता है वापस नहीं जाता, ओला गिरता है वापस नहीं जाता, मेरा मुंह से जो शब्द निकलता है, जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी की जो शब्द है, यहोवा परमेश्वर कहता है, जो मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ कभी वापस नहीं आएगा। वो अपने काम को, लक्ष्य को अवश्य पूरा करेगा। जो समय के अंदर मेरा और आप रहते हैं, ये समय बहुत कठिन समय है, याद रखना। और बाइबल बताती है कि आने वाले जो समय, बाइबल बताती है घड़ियाल घूम चुका है। यदि 12 बजे से अपना समय, हमारे समय 12 बजे से चालू होते हैं, यहूदी लोगों का समय सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है, ऐसे होते हैं। और बाइबल बताती है चक्र घूम चुका। कभी आप देखना, घड़ियाल का जो समय आगे जाता है, वो घड़ी पीछे की वो तरफ कभी मुड़ के नहीं जाता, क्योंकि उसका एक समय रहता है। इसलिए बाइबल बताती है देयर इज अ टाइम एंड सीजन फॉर एवरीथिंग। हर एक के लिए परमेश्वर ने एक समय रखा है, वो समय घूमते घूमते जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ऐसे समय सपन्या की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं, मनुष्य अपने विनाश के लिए सब कुछ कमा के रखा है, और उसी विनाश की वस्तु से मनुष्य का विनाश हो जाएगा। सो समय एक ऐसा आ रहे हैं कि बाइबल बताती है, मैं पृथ्वी पर से 1/3 लोगों को मैं, रेवलेशन में लिखता है, मिटा डालूंगा। भारी विपत्ति इस दुनिया के अंदर आने वाला है। और बाइबल बताती है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर डाल दूंगा। यहोवा की वाणी है, मैं मनुष्यों और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। अब ये बीमारी मनुष्यों में फैला है, जस्ट वॉच एंड सी, वेट एंड सी। अगला प्रॉब्लम जानवर के ऊपर पड़ने वाले। आज मनुष्यों की तरफ से ये बीमारी, ना लोग बात कर पाते हैं, ना हाथ मिला सकते हैं, हर बातें अछूत हो गए।
किसी को छूना मना है, किसी के साथ बैठ के खाना खाना मना है। अभी हर चीज मनुष्य बीमारी के ऊपर दूसरा लहर जो आ गया है, बहुत सारे लोगों को लेके के मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे बहुत सारे पहचान के प्रभु के सेवक लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए, बहुत सारे भाई बहन चले गए, कहीं कहीं परिवार के अंदर से सारे लोग नष्ट हो गए, एक भी नहीं बचा। माँ गए, बाप गए, बच्चे गए, ऑल इज गॉन। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे समय के अंदर जब मनुष्यों में बीमारी फैला है, अगला जो लहर आएंगे, अब देखना थोड़े समयों के बाद में वचन फेल कभी नहीं होता है। आप और मैं फेल हो जाते हैं, प्रभु का वचन कभी फेल नहीं होता है। अब अगला भयंकर बीमारी जानवरों में आएंगे, पक्षियों में आएंगे, और ये इससे बच नहीं सकते हैं। और जब ये बीमारी जब आ जाएंगे तो याद रखना, जैसा कि शायद मैं पहले आपको मैं बता चुका है, ऐसे समय मनुष्य के जीवन में आएंगे कि जब जानवर मरेंगे तो दूध मिलना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों से लेकर बड़ों तक दूध का नाम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जानवर के अंदर बीमारी रहेगा, मांस खाना बंद हो जाएगा। हर प्रकार से बाइबल बताती है कि मैं पशु दोनों का अंत कर दूंगा। तीसरी बात, मैं आकाश के पक्षी और समुद्र के मछलियों का उसका भी विनाश करेगा। सो मनुष्यों में बीमारी, दूसरा जानवरों में बीमारी, तीसरा पक्षियों में बीमारी, चौथा समुद्र के अंदर मछलियों में, और दुष्ट समेत उनके रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर दूंगा। यहोवा का ये वाणी, यहोवा के मुंह से जो निकला हुआ शब्द है। क्योंकि कभी भी आप ये बात को देख लेना कि जब भी मनुष्य जो बुराई करके, जब बुराई का चरम सीमा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना चरम सीमा, जब पहुंच जाता है, तब परमेश्वर कुछ बातों के लिए योजना बनाता है। और जब मनुष्य की जब बुराई बढ़ जाते हैं, विनाश के अलावा कोई रास्ता नहीं। और इसलिए देखो, योना के समय के अंदर योना परमेश्वर की दृष्टि से भग गया और जहाज की निचली भाग में जाके सो गया। वहां से चिट्ठी निकला, उसको समुद्र में फेंका और मछली ने उसको निगल लिया। और बाइबल बताती है जब वो वापिस आया, निनवे में जाने के बजाय उसको वो तरसुस में चले गए। मनुष्य जब अपना डायरेक्शन बदल देता है ना, तब बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए रोड के किनारे आप गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, आपको मालूम होगा रोड के किनारे लिखा हुआ है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। क्यों ये शब्द निकला है? आदमी का नजर यदि निनवे में के लिए बुलाया है, आप तरसुस में चले जाएंगे, दुर्घटना अवश्य होगा। और सिर्फ दुर्घटना उन्हीं को नहीं, पर उनके साथ में सफर करने वाले सब मुसीबत के पड़ जाएंगे। पर मैं आपको पहले एक शब्द कहा, जब परमेश्वर कोई चीज का डिसीजन लेता है, उसके अंदर परमेश्वर का एक दया भी रहता है। वो दया परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ रहता है। मैं आपको योना की किताब के अंदर लेके आना चाहता हूं। योना में उसका योना उसका 3रा अध्याय, उसका 10 वचन इस प्रकार से पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुर्मार्ग से फिर रहे हैं। सी वन ऑप्शन इज देयर। विनाश जब आते हैं, परमेश्वर एक ऑप्शन देखता है। क्या ऑप्शन है? सुनो। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। देखो, पहले इच्छा थी उसको नाश करने का। 1,20,000 लोग इस सिटी में रहते हैं, इनको नाश करना परमेश्वर नहीं चाहता, इसको नाश करें। पर वहां पर बुराई बढ़ने की वजह से परमेश्वर ने इनको वहां पर भेजा। और बाइबल ये बतलाती है कि वे अपनी इच्छा, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दिया। परमेश्वर अपनी इच्छा कब बदलता है? इसी ये सबसे बड़ी खूबी है ये स्वयं परमेश्वर के अंदर। जब वो क्रोध होता है, उसका क्रोध का सामना कोई कर नहीं सकता है। जब वो योजना बनाते हैं, जब परमेश्वर कोई प्लान करता है, उसके मुंह से शब्द निकलता है, वो रिटर्न नहीं आता। जैसे बारिश ऊपर से वापस गिरता है, वापस नहीं जाते, ओस गिरता है, वापस नहीं जाते, परमेश्वर का शब्द वापस नहीं जाता। पर परमेश्वर अपने विचार बदल सकता है।
और यहाँ पर जब इस निनवे को नाश करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने योजना बनाया, सो बाइबल बताती है आगे समय को बचाने के लिए मैं पढ़ता हूं। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करते गया, अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। देखिए, समय दिया गया है, समय देने का परमेश्वर का काम है, पर समय को सुनना और उसका पालन करना आपका और मेरा काम। नोआ के समय के अंदर 7 दिन का समय दिया, योना के समय के अंदर 40 दिन का समय दिया। गॉड गिव ग्रेस टाइम, परमेश्वर मनुष्य को समय देता है। और यहां पर लिखता है अब से 40 दिन बीतने पर, मतलब घड़ियाल स्टार्ट हो गया, टाइम शुरू हो गया। अब से, ऐसा लिखा ना, बड़ा अच्छा शब्द है। अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े क्लेश और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने ठाट ओटा। और आगे समय बचाने के लिए कई वचन को मैं छोड़ देता हूं। और ये कहा, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे के इस आज्ञा का टिटोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, भेड़, बकरी और अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और दोनों पशु दोनों टाट ओढ़े हुए परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो करना चाहते हैं पश्चाताप करें, संभव है ना। ये शब्द बहुत बहुत प्यारा शब्द है। मतलब परमेश्वर कोई चीज को विनाश करने के लिए जब परमेश्वर के मुंह से शब्द निकलता है, उस शब्द के पीछे भी एक दया का है। क्या है? यदि मनुष्य अपने पश्चाताप करे, कुमार्ग से फिरे, गलत रास्ते से फिरे, पश्चाताप करें, बुराई से बाहर निकल के आए, तो परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलता है व्यर्थ कभी नहीं आता है। पर परमेश्वर के अंदर एक सत्य छिपा हुआ है कि वो अपने लोगों से प्यार करता है। तो मनुष्य, वो नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो, पर मनुष्य खुद अपने आप नाश होने के लिए कुछ करते हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? आज मनुष्य अपने विनाश के लिए सब कुछ टेक्नोलॉजी करके रखा है, अपने नाश करने के लिए, और जिससे मनुष्य अपने आप नाश हो रहे, विनाश में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को समय दिया, सुधरने के लिए, समझने के लिए समय दिया, और इसलिए लिखा है 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। और तब निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने ठाट ओटा। ये लास्ट ऑप्शन है क्रिस्ती जीवन के अंदर। अब ये कोरोना, ये बीमारी आए, देयर इज स्टिल ऑप्शन। यदि निनवे के समय के अंदर परमेश्वर ने कहा कि मैं नाश करूंगा, उसके मुंह से शब्द निकला है, पर स्टिल देयर इज अ ऑप्शन। क्या रास्ता है? आखिरी ऑप्शन, आखिरी रास्ता क्या है? ये परमेश्वर चाहता है, ठाना है मन के अंदर, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आएगा। यदि विनाश करेगा, विनाश ही करेगा, नाश होएगा, नाश होएगा, खत्म करेगा, जो कुछ प्रभु कहता है वो ऐसे होगा। पर आप और मैं कौन है? मैं और आप परमेश्वर की सृष्टि है, और मनुष्य जब गलत करता है उसके ऊपर एक लास्ट ऑप्शन रखता है। ऑप्शन क्या है? जो हमने पढ़ा है, मनुष्य पहली बात अपनी गलत रास्ते से फिर के आए, दूसरा वो पश्चाताप करे, परमेश्वर के मुंह को ढूंढे, चेहरे को ढूंढे, निहारें, और उपवास करें और प्रार्थना करें और बुराइयों को छोड़ दें। अभी क्रिस्ती जीवन के अंदर का एक बात आपको बताता हूं। क्रिस्ती जीवन के अंदर हम पश्चाताप करते हैं और हम अपने गलतियों को मान लेते हैं, ये भी सही बात है, वहां तक हम सब सही है। पर आगे एक और शब्द है, हम उसको छोड़ नहीं देते। बाइबल बताते हैं जो अपनी गलती को मान लेता है उसके ऊपर नहीं, जो उसको छोड़ देता है उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। सो यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर देखो प्रतीत की, उपवास किया, सब कुछ, और शब्द यहाँ पर बहुत अच्छा आया, निकल के आया है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। ओ, संभव है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द के अंदर संभव है। मनुष्य अपने कुमार्ग से, बुरे रास्ते से फिरे,
तो शायद परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ जो शब्द है, जो योजना है, ये परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर बदल सकता है। इसलिए बहुत अच्छा लिखा है, वो अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो करते हैं पश्चाताप करें। सो मनुष्य पश्चाताप करें। मैं अभी भी, ये कोरोना की बीमारी देश दुनिया के अंदर फैला है, यदि मनुष्य पश्चाताप करें और बुराई से बाहर आए, लोग उपवास करें और सच्चे परमेश्वर के नाम को पुकारें, प्रभु यीशु के नाम को पुकारें, उसे दिन रात प्रार्थना करें, उपवास करें, रोए पीटे मातम करें, तो मैं विश्वास करता हूं जैसा निनवे के लिए मातम किया, छाती पीटा, रोया, उपवास किया, जानवर को भी उपवास में रखा, सब बच्चे से लेकर बड़ों, स्त्री पुरुष सबको उपवास में रखा, और परमेश्वर ने अपना प्लान को बदल दिया। लिखता है उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें, संभव है। हमारा गाना भी हम गाते हैं ना, संभव है, संभव है। तो यहां पर वैसे ही है, संभव है, परमेश्वर दया करें। पॉसिबिलिटी, परमेश्वर दया कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। और दूसरा उसके अंदर गुण, वो दयालु है, विलंब से कोप करने वाला भी है। दूसरा, तीसरा बात, अति करुणामय है। ये तीन शब्दों के बीच में पहला शब्द आप देखना, परमेश्वर दयालु है। दूसरा, विलंब से क्रोध करने वाला। सो क्रोध के लेफ्ट एंड राइट में क्या है? दया है और करुणा है। सो बीच में परमेश्वर के शब्द के बीच में क्रोध है, गुस्सा है, पर परमेश्वर के गुस्सा को ठंडा कर सकता है मेरे और आपकी दुआ, उपवास और प्रार्थना, रोना, आंसू। इसलिए बाइबल बताते वो दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला है और अति करुणामयी परमेश्वर है। उसकी दया, उसकी करुणा का कोई नाप नहीं है। और आगे इस प्रकार से पढ़ते हैं, संभव है परमेश्वर दया करे, इच्छा बदले और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। देखा आपने, उसका क्रोध, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हम नष्ट होने से बच जाएंगे। नाउ 10वां वचन बड़े ध्यान से पढ़ना। जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा, कौन सा काम? उपवास करना चालू किया। कौन सा काम? घर में प्रार्थना नहीं होता था, घर में प्रेयर चालू हो गया। घर में बाइबल नहीं पढ़ता था, बाइबल पढ़ना चालू हो गया। कभी आंख से आंसू नहीं आते थे, अभी आंसू बहना चालू हो गया। सो अपनी गलती को मानता नहीं था, अभी मानने लगा। अभी पश्चाताप नहीं करता था, पश्चाताप करने लगा। सो बाइबल बताए, जब मनुष्य ने उनके कामों, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, कौन सा काम? ये ऊपर बताए हुए काम को देखा, वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, मतलब पश्चाताप कर रहे हैं। यूटर्न मारा, यूटर्न। अब जीवन के अंदर कभी भी गलत रास्ते से जब मालूम पड़ता है, पश्चाताप का शब्द ही ये यूटर्न है। आप जब आपको लगता है कि मैं गलती कर रहा हूं, गलती का एहसास होता है, तो वहां पर फुल स्टॉप होता है, रुक जाता है और आप टर्न करता है, यू टर्न करता है, जिसको बोलते हैं पश्चाताप। मैंने गलती किया, मैं गलत रास्ते पे आ गया, अभी मैं सही रास्ते पे मिल गया। पश्चाताप कर उसके कामों को देखा, कुमार से फिर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दिया। देखा आपने, परमेश्वर संभव है, परमेश्वर अपनी इच्छा बदल सकता है, बदल दी। और उनको जो हानि करने के लिए ठानी थी, नुकसान करने की योजना बनाया था, नुकसान करने के लिए ठानी थी, उसके मुंह से जो शब्द निकला, जैसा यशायाह में हमने पढ़ा था, उसके मुंह से जो शब्द निकला था वो व्यर्थ वापस कभी नहीं आता है। और इसलिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने के लिए ठानी थी, उनको ना किया। देखा आपने, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। अब एक और उदाहरण आपके सामने रखूंगा प्रार्थना करने से पहले। हिजकिय्याह राजा बहुत बीमार हो गया था और परमेश्वर ने कहा कि जाओ उसको बोल दो, घर की सारी बातों को ठीक करो। घर का सब वातावरण सही नहीं है, फैमिली का वातावरण सही नहीं, इसलिए पहले जाके फैमिली का वातावरण, घर की बातें को सबको तुम ठीक करो। और उसको ये कहा तू निश्चय मर जाएगा। और जब परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द वापस आएगा, मर जाएगा मीन्स मर जाएगा, दिस इज नो ऑप्शन। कोई उसके लिए रास्ता नहीं। जब परमेश्वर स्वयं कहता है कि मर जाएगा मीन्स मर जाएगा। पर मृत्यु के अंदर भी एक ऑप्शन है, ये सबसे बड़ी खुशी है।
मरने के समय के अंदर भी एक ऑप्शन है। आदमी किसी को फांसी पे चढ़ाता है तो उसको पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, और वो इच्छा पूरा करने की कोशिश करता है। सो यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दिया। आप परमेश्वर की योजना को पृथ्वी पर बैठकर बदल सकता है। याद रखना, परमेश्वर के मुंह से जो निकला हुआ शब्द है व्यर्थ कभी नहीं आता है, पर उसके मुंह से निकला हुआ शब्द वापिस नहीं आता है, पर निकला हुआ शब्द के अंदर एक बड़ा सत्य छिपा हुआ है, वो है वो अपनी इच्छा बदल सकता है। आज सुबह के समय मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी के राजा बाइबल बताती है दीवार की तरफ मुड़कर रो रहा था। शायद जीवन में कभी इतना वो कभी रोया नहीं। सही बात होगा कि जब स्वयं जीवन देने वाला कहता है तू बेचेगा नहीं, आगे कोई ऑप्शन नहीं, पर उसने इतना रोया शायद जीवन भर में कभी नहीं रोया होगा। दीवार की तरफ देखकर और रोया, और उस रोने की आंसुओं को परमेश्वर ने देखा। बाइबल बताती है जो उसके मुंह से निकला हुआ शब्द था उसको बदल डाला, और क्या कहा, जाकर उसको बोल दो इसके राजा को तू मरेगा नहीं, और उल्टा मैं तुमको 15 साल का उम्र भी और बढ़ा देता। सो देखिए, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है वो व्यर्थ वापस नहीं आता है, पर मनुष्य जब पश्चाताप करते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं, देश गांव शहर जब बुराई को छोड़ देते हैं, परमेश्वर दया करता है, अपने योजना को बदल देता है। तो बाइबल यहाँ पर हम साफ पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, वे कुमार से फिर रहे, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने के लिए ठानी थी उसको ना किया। संभव है परमेश्वर अपना प्लान को बदला। ये संभव है, ये बीमारी होना तो जरूरी है, पर संभव है यदि देश के लोग पश्चाताप करें, यदि निनवे के लोग पश्चाताप करके परमेश्वर ने अपनी योजना बदल सकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश हमारे गांव इस बीमारी से झुलस रहे हैं। संभव है, यहां पर वही शब्द मैं वापस लेके आता हूं, संभव है परमेश्वर अपना योजना को बदल सकते हैं। और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन के अंदर ऐसा काम करें जो हम में से कोई नष्ट न हो। संभव है यदि लोग दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि लहर बताते हैं ये दूसरा लहर तेज, पहले लहर से तेज, और तीसरा लहर जो आने वाला है इससे भयंकर होगा। सो आने वाले समय के अंदर बीमारी, मनुष्य यदि पश्चाताप ना करें, बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर ने कहा मैं मेरे तलवार के धार को शार्प करूंगा, मेरे तलवार के जो शार्प है उसको मैं और बढ़ाऊंगा, उसके धार को मैं और शार्प करूंगा। मनुष्य पश्चाताप ना करें, और यदि पश्चाताप करते हैं देयर इज ऑप्शन, एक आखिरी ऑप्शन है, हो सकता है, संभव है, कोरोना के बीच में संभव है, आंसुओं के बीच में संभव है, मृत्यु के बीच में, निराशा के बीच में संभव है। आप अपने बच्चे के बारे में आज सुबह के समय चिंतित है, संभव है, गॉड आपके ऊपर दया करे। हम अपनी कलीसिया के बारे में दुआ करें, कलीसिया के लिए दुआ करें, संभव है परमेश्वर हमारे लाइफ को बचा के रखें, हमारे परिवार, हमारी कलीसिया को, हमारे सेवकों को परमेश्वर बचा के रखें। इस आंधी के अंदर, इस तूफान के अंदर कई लोग उड़ गए, पतंग के समान उड़ के चले गए, और आपको और मुझे परमेश्वर ने संभाल के रखा। बाइबल बताती है तुम नाश नहीं हुए, ये परमेश्वर की महाकरुणा है। तो उसका क्रोध, उसकी दया, वो विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। उसकी करुणा का लास्ट ऑप्शन हमने देखा है कि मनुष्य पश्चाताप कर बुराई से वापस यू टर्न लेगा, रिटर्न आएगा, वापस आएगा, परमेश्वर उसके ऊपर दया करेगा, और देश के ऊपर दया करेगा, और राज्य के ऊपर परमेश्वर दया करेगा। पर आज दुखी बातें हैं, हमारे देश परमेश्वर को नहीं जानते और चाहते भी नहीं, और जिसके वजह से देश के अंदर बहुत सारी विपत्तियां देश के अंदर पड़ रहा है। तो इसलिए हम जागते रहें,
और प्रार्थना करते रहे, क्योंकि बाइबल बताती है तुम उस घड़ी और उस समय को तुम नहीं जानते हो। आखिरी एक वचन में आपके सामने रखकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मत्ती किताब उसका 24 अध्याय के अंदर यहाँ पर बाइबल बताती है, उन दिनों में गर्भवती और दूध पिलाती लोगों के लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम जाड़े या सब्त के दिन भागना ना पड़े। बाइबल बताती है प्रार्थना करो, हमें भागना ना पड़े। इसीलिए जो समय के अंदर मैं और आप रहते हैं, ये समय बहुत ही कठिन समय है। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द व्यर्थ कभी नहीं आएगा। यदि परमेश्वर की योजना को बदल सकता है, इंसान यहाँ पर रहकर ताकत से, बल से नहीं, पर आंसुओं से, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा गॉड कैन चेंज हिज प्लान। परमेश्वर अपनी योजना को बदल सकता है। अब निराश ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि समय हमारे सामने है। वचन को पूरा होना भी बहुत जरूरी है। लॉर्ड आज सुबह के समय आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। आपके परिवार को परमेश्वर आशीष दें। आपके बच्चों को परमेश्वर सुरक्षित दें। पत्नी, पति, बच्चे, नौकरी, हर बातों को प्रभु सुरक्षित रखें। बहुत कठिन समय हमारे आंखों के सामने है। लॉर्ड आप सबों को आशीष दें, आपको बचा के रखें हर प्रकार के भय से, क्योंकि बाइबल बताती है, क्योंकि मनुष्य अपने समय को नहीं जानते। और इस कारण से मैं और आप प्रभु की प्रार्थना के अंदर और विश्वास के अंदर आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखें, संभाल के रखें, हर प्रकार के भय और बीमारी परेशानी से बचा कर रखें। यहोवा परमेश्वर कहता है, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द व्यर्थ वापस नहीं आएगा। और उसके अंदर छुपा हुआ एक मर्म सत्य बात मैंने आपको बताया, यदि वो वापस नहीं आता है, वो जो कहता है वो पूरा करता है, परंतु उनके शब्दों के अंदर छिपा हुआ एक जीवन है। इंसान की पश्चाताप, दुआ, प्रार्थना, गॉड कैन चेंज। संभव है, परमेश्वर बदल सकता है, संभव है, पॉसिबिलिटी देयर, 100% नहीं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो आइए सुबह के समय हम प्रभु के वचनों के अंदर आगे बढ़े। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दें, घर में सुरक्षित रहें और घर में प्रार्थना का जीवन को बिताएं और परमेश्वर के वचन को गले का हार बनाएं। May the God bless you all। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। ये दिन आप सबों के लिए शुभ हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस वक्त बड़े आदर के साथ तेरे पास में आते हैं। आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं प्रभु, जीवित तेरी बड़ी करुणा से। चारों तरफ रोने की आवाज, चारों तरफ घबराहट की आवाज, इसके बीच में तेरे बच्चे सुरक्षित है प्रभु। आज हमें से हर एक को तू संभाल कर रखा प्रभु। तेरे दासों के परिवारों को, विश्वासी भाई बहनों को तू संभाल कर रखा है प्रभु जी। ये तेरी बहुत बड़ी दया है और इसलिए प्रभु जी संभव है परमेश्वर अपनी इच्छा बदल डाले। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, ये देश के अंदर से बीमारी निकल जाए, हम में से किसी को भी बीमारी छूने ना पाए, शैतान किसी को भी छूने ना पाए, किसी परिवार को छूने ना पाए। तेरे पवित्र लहू के सामर्थ के अंदर प्रभु जी हर परिवार को कवर करके रख प्रभु जी। हर प्रकार की करुणा के शक्ति, बीमारी, निराशा, भय प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर परिवार से दूर हो जाए, शैतान छूने ना पाए। जैसे पुराने नियम के अंदर प्रभु जी उस खून दरवाजे के चौकट में लगाया था, उसी प्रकार से इस नए नियम के अंदर भी ये तेरे पवित्र लहू का जो खून है हमारे जीवन के चौकट में बना रहे, शैतान नजदीक ना आए प्रभु जी। हमें से हर एक को तू बचा करे, आने वाली विपत्ति से बचा करे, मुसीबत तकलीफ से बचा करे, क्योंकि वचन को पूरा होना जरूरी है प्रभु जी। हम पर दया करना, सारे कमजोरियों को क्षमा कर, तेरे वचन के अंदर आगे बढ़ा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते सारे आशीषों के लिए, यीशु मसीहा तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, सामर्थ, अधिकार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से होता है,
अब भी होता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आज सुबह के समय आशीष दें। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोगों को प्रभु सुरक्षित रखें और ज्यादा समय प्रार्थना और समय के अंदर रखें और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। may the God bless you all। प्रभु आप सबों को आशीष दें। God be with you till we meet again। आमीन।